Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to ComSat Institute of Information Technology, Virtual Campus, Islamabad. This course, as you know, is in continuation of the learning management systems with the course code CSC350. In this continuation of this course, today our lecture is on again Moodle. So we have arranged a number of lecture series on Moodle. Before we formally start the new topics of today's discussion, let us very quickly review what we have done in the previous lecture. Moodle, as I discussed earlier, is the abbreviation or the acronyms for the Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. In the last lecture, I briefly introduced why the Moodle has been named so. Well, reviewing it again, in this, with the help of this software, basically the objective is to get the students acquainted with the pedagogy of learning. Pedagogy, as I mentioned earlier, pedagogy is the system of learning. So the person who makes you learn is known as pedagogue. So a teacher or a trainer or the person who is teaching you different methods and techniques of learning is pedagogue. Why pedagogue? Because he uses his mind, his knowledge, treasure of his knowledge in different ways to make you learn. Now this learning can be in steps in certain organized way. There are different modules, there are different models which are developed in order to make the students learn in very organized way. So Moodle is basically, the purpose of Moodle is to develop this pedagogy for the assistance of the students, so that student can comfortably learn through organized way. They can part their knowledge, they can share their knowledge with their teachers, and the teacher can equally respond them and help them wherever they are stuck or wherever they are in a difficult situation of learning. So student, in the pursuit of defining this software, which is in the domain of learning management systems, very quickly let us review what we have done in the previous lecture. पिछले लेक्चर में हमने Moodle को Moodle in brief हमने डिस्कस किया था कि इसका फाउंडर कौन है और किस तरीके से इसको अब कम्युनिटी ऑन करती है और कैसे ये डेवलप हुआ, इसका मकसद क्या था और इसके कितने वर्जन्स अब तक अवेलेबल हैं. इसके अलावा हमने इसको ओवरव्यू किया था कि इसमें पेडागॉजी जो है किस तरीके से यूज़फुल हो सकती है. अगरचे कुछ रिसर्चर्स का, कुछ टीचर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि Moodle अगरचे एक ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ लर्निंग प्रोवाइड करता है, लेकिन इससे पेडागॉजी डेवलप नहीं होती. तो पेडागॉजी किस तरह डेवलप होती है, कुछ यूज़र्स का, कुछ टीचर्स का, ट्रेनर्स का और एक्सपर्ट्स की ये ओपिनियन है कि पेडागॉजी इंटरैक्टिव सेशन से ज़्यादा डेवलप होती है, बजाय इसके कि हम एक फिक्स्ड और एक सिस्टम से और कस्टमाइज्ड वे से हम लर्न करें. तो कुछ जो टीचर्स हैं, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी ये राय है कि पेडागॉजी सिस्टम से डेवलप नहीं होती, उनका ख्याल है कि एक ये बहुत ज़्यादा ये स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग है.
तो आमतौर पे हिस्ट्री में ये देखने में आया है कि एक अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग से जो फोकस्ड और जो फोकस्ड अप्रोच बनती है और किस तरीके से इंसान एक क्यूरियोसिटी से चीज़ें लर्न करता है और अपनी लर्निंग को फिर इम्प्रूव करता है, तो उससे जो इनोवेशन होती है उसमें पेडागोजी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो बहरहाल ये एक फ़िलोसॉफ़िकल डिस्कशन है। बहरहाल मूडल जो है एक आज के दौर में जो आजकल ख़ास तौर पे इसके लेटेस्ट वर्जन्स जो मौजूद हैं, जो 2 से अबव सीरीज़ के हैं, वो उनमें बहरहाल एक डायनामिक वे ऑफ लर्निंग वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टाइम के चेंज के हिसाब से मज़ीद फैसिलिटीज़ अपडेट और अपलोड की जा रही हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है अब तकरीबन इंडस्ट्रीज़ में, जैसे मैंने ज़िक्र किया था, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में इसकी जो एप्लीकेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स, इसी पर्सपेक्टिव में मैंने इसके कुछ टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स है वो भी डिस्कस किए, जैसे प्लगइन्स, थीम्स, मोबाइल में इसकी एप्लीकेशंस किस तरीके से बढ़ रही है और किस तरीके से फिर इसके जो ट्रांसलेशंस जो है दुनिया के मुख्तलिफ ज़बानों में इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। और मज़ीद जो है कुछ फैसिलिटीज़ अब ये भी अवेलेबल हैं कि अगर आप नेट से कनेक्टेड हों और इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो ऑन द स्पॉट ट्रांसलेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ख़ास तौर पे ये जो ट्रांसलेशन की फैसिलिटी है इसको बहुत ज़्यादा कॉमन उस वक्त करना पड़ा जब चाइना जो है, जो कि लर्निंग के हिसाब से जो कि जिसकी एजुकेशन सिस्टम जो है वो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग था, एक डिफरेंट स्टाइल था। और चाइना में, पूरे चाइना में गिने चुने लोग चाइनीज़ लैंग्वेज के अलावा कोई ज़बान नहीं जानते थे। सिर्फ अब गिने चुने लोग ही चाइनीज़ ज़बान के अलावा कुछ इंटरनेशनल जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जानते थे। तो ऐसे कंट्रीज़ के लिए इस सॉफ्टवेयर की बेहद ट्रांसलेशन की ज़रूरत पेश आ रही है और ये अब उस ज़बान में भी इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है और इसके सिमिलर सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक्स के हमारे डिस्कशन के जो एरियाज़ हैं उनकी डिटेल्स कुछ इस तरह से है कि हम पहले इसको वेरी क्विकली हम जो हमने थोड़ा सा हम लिंक करेंगे इसको प्रीवियस लेक्चर के साथ कि इसके जो डेवलपमेंट है, प्रोसेस है, उसकी यूजिबिलिटी और यूटिलिटी किस तरीके से आज के दौर के लिए है। फिर ये मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा, इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसमें वेरी क्विकली, वी विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन इट। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो उसमें ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, लेकिन चूँकि वी वर एट द वर्ज ऑफ क्लोजिंग द लेक्चर, देयरफॉर हमने इसको बहुत ही तेज़ी से गुजारा था। तो उसके बाद फिर एंड ऑफ लाइफ का ये कॉन्सेप्ट, ये क्या चीज़ है, इसको हम पढ़ेंगे। और ये इसी क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है वो डेवलपमेंट ऑफ मॉडल के साथ है, इसलिए जिसमें ये जो नीचे फुट नोट में ये जो 3 डिफरेंट कलर के जो दिखाई गई हैं स्पेसिफिकेशन या लेजेंड, तो इसका ताल्लुक़ उससे है एंड ऑफ लाइफ का। और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड ऑफ लाइफ का, प्रोडक्ट से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इसलिए हम इसको भी डिस्कस करेंगे इससे रिलेट करके। उसके बाद फिर हम इसको रिलेट करेंगे कि कंप्यूटिंग के साथ
EOL या एंड ऑफ लाइफ का क्या ताल्लुक है और कहाँ पे इसके क्या मीनिंग्स निकलते हैं। और मैनेजमेंट में इसके बड़े स्ट्रॉन्ग मीनिंग है। मैनेजमेंट में ना सिर्फ ये कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ इसका ताल्लुक है, बल्कि मार्केटेबिलिटी और मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इसको हम डिटेल से फिर करेंगे। इसके बाद फिर हम एक ये जो है क्रिएटिंग अ न्यू कोर्स, एक नया कोर्स जो है वो किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं मॉडल के अंदर, इसकी तरफ हम जाएंगे। और फिर इंटरऑपरेबिलिटी को हम ब्रीफली इसको, और फिर इसके बाद जो है हम बैकग्राउंड क्या है इसको हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। देन वेरी क्विकली हम इस बैकग्राउंड को इसके ओरिजिन से कैसे ये डेवलपमेंट है उसको हम थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। इसके अलावा पेडागोजिकल अप्रोच जो है इसका क्या मतलब है, और ओरिजिन ऑफ नेम जो है वो इसका क्या मतलब है, और फिर मूडल कॉन्फ्रेंसेस का क्या पर्पस है। मूडल कॉन्फ्रेंसेस जो पूरी दुनिया में अब कंडक्ट होती हैं, ये किस तरीके से यूज़फुल हैं। इसके अलावा हम मॉडल की अडॉप्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एंड देन क्रिएटिंग ए न्यू कोर्स फॉर्मली वी विल रीच हियर। इसके बाद हम स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट स्टार्ट इन मॉडल। ये कुछ स्टेप्स हैं, ये इसकी विंडोज़ हैं कि इसको हम किस तरीके से हम एक नया कोर्स जो है इसमें बिल्ड करते हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं जिनको हमने देखना है। इसके अलावा फिर इससे रिलेटेड कुछ इसके सेटिंग्स से, और फिर किस तरीके से इसको कोई मटेरियल जो कोर्स से रिलेटेड हमने ट्रेनिंग से रिलेटेड मटेरियल जो डेवलप किया है, अगर उसमें कोई एडिटिंग की ज़रूरत पेश आती है तो हम उसमें एडिटिंग किस तरह करते हैं। तो ये हम इसी तरह हम फिर एडिटिंग एलिमेंट्स ऑफ आवर कोर्स, अगर हम कोई कोर्स डेवलप कर रहे हैं तो उनके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके कौन से आइकॉन हैं और इन आइकॉन्स का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, ये हमारा आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह इसको हम आई होप इट विल बी यूजफुल स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करें डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी ब्रीफली बताया था कि मॉडल जो है इट हैज़ कंटिन्यूड टू इवॉल्व सिंस 1999। अगर मैं सम अप करूं प्रीवियस लेक्चर की उसको कि 99 से ये इसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, और 2000 सिंस 2001 विद द करंट आर्किटेक्चर, जो इसका करंट आर्किटेक्चर है वो तकरीबन 2001 से स्टार्ट होता है। यानी आइडिया जो है वो तकरीबन 99 से ही ये था कि इस किस्म का कोई सॉफ्टवेयर हो जिससे टीचर्स या ट्रेनर्स या एकेडमिशियंस जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स की मैक्सिमम नीड को फुलफ़िल कर सकें, पूरा कर सकें, और जिसके अंदर टाइम मैनेजमेंट भी हो, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो, एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग भी ज़्यादा हो, और टीचर स्टूडेंट की मीटिंग्स जो है वो कम से कम हो, वही टाइम जो है वो लर्निंग पे ज़्यादा सर्व करें, और स्टूडेंट्स के लिए एक सेल्फ सफिशेंसी हो कि वो अपने पास पूरा उनके पास कोर्स का मटेरियल हो और वो जब चाहें इसको अपने पसंद के टाइम के मुताबिक बैठकर लर्न कर सकें। तो लिहाजा इसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस 1999 से स्टार्ट होता है, और इसकी आर्किटेक्चरिंग जो है या इसकी मेकिंग जो है वो तकरीबन 2001 से तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़बानों में मुल्कों में इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है, और अभी मज़ीद लोकल लैंग्वेजेस में इसकी ट्रांसलेशन जारी है।
Institutions can add as many Moodle server as needed without having to pay any license fee. इसके साथ क्योंकि Moodle servers जो है वो बहुत सारे Moodle servers जो है वो इसमें ऐड किए जा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जब भी हमने मसलन इवन अगर कोई मल्टीपल कैंपसेस यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो इसको मल्टीपल कैंपसेस तक एक्सपेंड कर सकती हैं। मैंने पिछले लेक्चर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था जो इस्लामाबाद में है, उनके मल्टीपल कैंपसेस हैं और वो इसके सिमिलर एक सॉफ्टवेयर से जिसका उनका अपना नाम है वो उससे इस वक्त तकरीबन 5 या इससे ज़्यादा कैंपसेस को उन्होंने इसके ज़रिए से कनेक्ट किया हुआ है। और इस तरीके से स्टूडेंट्स जो आजकल एडमिशन का जैसे सीज़न है तो एडमिशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उनके पास ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन से लेकर एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन का पूरा प्रोसेस, टेस्ट, इंटरव्यू से लेकर एंड तक, पासिंग आउट तक जो है वो सारा इस सिस्टम के थ्रू होता है। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से करते हैं वो कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है वो जनरेट होता है एक टेम्पलेट, उस टेम्पलेट में वो अपना बायोडाटा और जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं और ऑप्शंस आ जाते हैं कि कौन से कैंपस में कैंडिडेट जो है वो इंटरेस्टेड है। टेस्ट के लिए उसकी मोबिलिटी का होना ज़रूरी नहीं है। स्टूडेंट जो है वो अपने करीब तरीन कैंपस में जाके टेस्ट दे सकता है और कुछ केसेस में इन स्टार्ट में इन्होंने घर में बैठ के भी टेस्ट देने का शुरू किया था, लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज आए क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डिसऑनेस्टी का इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए ये बंद करना पड़ा। एक तरीका ये भी था कि इसके साथ स्काइप कनेक्ट करके तो घर बैठे हुए कैंडिडेट्स को भी टेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसको फिर इस कॉन्सेप्ट को फर्दर इम्प्रूवमेंट, फर्दर रिफाइन किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स की या कैंडिडेट्स की मोबिलिटी कम से कम हो और इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बहरहाल ये एक इनिशियली जब कैंडिडेट उसमें एप्लीकेशन सबमिट करता है तो उसका इनिशियल एक सीरियल नंबर जनरेट हो जाता है जो कि उसके पूरे पासिंग आउट होने तक वो नंबर रहता है। यूनिवर्सिटी के पास एक रिकॉर्ड ये होता है कि ये जितने सीरियल नंबर जनरेट हुए उनमें से जो एक्टिव हैं, एक्टिव से मुराद जिनका एडमिशन मटेरियलाइज हो गया, जो मेरिट पे आ गए, वो उसी ARN नंबर के साथ वो कंटिन्यू रहता है। तो उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। जब ARN जनरेट हो जाता है तो ARN के बाद उसको वो तो टेस्ट जो है वो टेस्ट भी उसी वक्त उसको करीबी कैंपस में जाके वो टेस्ट के लिए बैठ जाता है। चूँकि उसके अंदर डाटा बैंक मौजूद है तो क्वेश्चन पे टेस्ट बैंक जो है वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन जनरेट करता है जिसको कैंडिडेट अटेम्प्ट करता है। इवन ऐसे राइटिंग के लिए भी उसके पास शुरू में जब यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया गया तो ऐसे राइटिंग के लिए उन्होंने इसको कंप्यूटर बेस्ड ही बनाया था, लेकिन चूँकि कुछ कैंडिडेट्स की टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बाकियों के मुकाबले में, इसलिए उनकी वो ऐसे राइटिंग में उनके नंबर ज़्यादा आते हैं और आते थे और जो स्लो राइटर थे उनके मार्क्स कम आ जाते थे। इसलिए अभी इसको दोबारा से ऐसे राइटिंग जो है वो क्वेश्चन तो जनरेट हो जाते हैं और उन क्वेश्चंस को पढ़ के कैंडिडेट जो है वो उसको शीट प्रोवाइड की जाती है और वो उस शीट पे अपना टेस्ट जो है यानी राइटिंग एंड ऐसे वो करता है और इस राइटिंग ऐसे को फिर बाद में इवेल्युएट किया जाता है
तो सिवाय इसके, इस हेडेक के और इस टाइम टेकिंग प्रैक्टिस के, एक्सरसाइज के, बाकी तकरीबन तमाम एडमिशन टेस्ट का जो है वो इसके थ्रू किया जा रहा है। और इसका बाकायदा जो रिज़ल्ट है वो फिर कंपाइल होता है और एक इसके साथ जो है एक मेजरमेंट मीटर लगाया जाता है जो टाइम बताता है और जो कंपेरेबल होता है कि कितने लोगों ने, कितने कैंडिडेट्स ने टेस्ट जो है वो कम वक्त में किया है, कितने लोगों ने ज़्यादा टाइम लिया है और कितने लोगों ने कम वक्त में मुकम्मल किया है, और कितने लोग हैं जिन्होंने अपना फुल टाइम यूटिलाइज़ करने के बावजूद इसको मुकम्मल नहीं किया। तो उससे टेस्ट के इजी या डिफ़िकल्टी का अंदाज़ा लगाया जाता है और फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो उस टेस्ट बैंक के अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस करनी हो या फर्दर क्वेश्चंस जो हैं ऐड करने हों वो उसके अकॉर्डिंगली उनको बनाया जाता है। तो एक लिहाज से इसके अंदर एक असेसमेंट प्रोसीजर भी अवेलेबल है। तो बहरहाल टेस्ट के बाद जब मेरिट लिस्ट जो है उसको देखा जाता है और एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एक मार्क्स के हिसाब से स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज या अरेंज किया जाता है और एक कट ऑफ पॉइंट डिसाइड करने के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो वेब पे लगा दी जाती है। तो उसके मुताबिक फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो उसका प्रिंट आउट लेकर और उसको अपने किसी भी करीबी कैंपस से वेरीफाई करने के बाद अपनी फ़ी जमा कराता है और फ़ी वाउचर और सारी चीज़ें भी ऑनलाइन जनरेट होती हैं। तो जिसका नाम उसके अंदर होता है लिस्ट के अंदर, उसी के नाम से ही फ़ी वाउचर जो है जनरेट हो सकता है। जिसका एडमिशन नहीं होता मेरिट लिस्ट में, जिसका नाम नहीं आता फाइनल, उसका फ़ी वाउचर जो है वो भी जनरेट नहीं होता। तो स्टूडेंट ये एक है, इसको इंग्लैंड में इसकी काफ़ी पजीराई हुई है और इंग्लैंड की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये ख़ास तौर पे ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ यूके में ये एक लर्निंग सिस्टम के तौर पर ये ऑलरेडी प्रैक्टिस में है और तकरीबन 2 लाख के करीब इसके यूज़र्स हैं और मज़ीद जो है इसमें बढ़ रहे हैं। ये इसकी ओवर द ईयर्स जो है वो डेवलपमेंट है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसमें जो रेड हैं वो इसका ओल्ड वर्जन है और जो येलो है ये रिलेटिवली लेस ओल्डर वर्जन आप कह सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ सपोर्टिंग एंड स्टिल दीज वर्जन्स आर इन द यूज़। जो लेटेस्ट वर्जन है वो ग्रीन के साथ है, but these versions are not available in the market. इसमें रेड में जो 9 जुलाई 2012 का है, मेंटेन फ्रॉम 2008 to June 2012, third party extended support until December 2013. इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये जो थर्ड पार्टी एक्सटेंडेड सपोर्ट है इसका सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्रीज़ में क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा ये जो है 2012 का ही जो कि बेसिकली रिलीज़ डेट जिसकी जो है वो लेटर है 2010 है, 24 नवंबर 2010। इसमें इसको तकरीबन जून 2012 तक मेंटेन किया गया। इसी तरह तकरीबन इट कंटिन्यूइंग विद द अदर जो 5 दिसंबर 2011 को जो जिसकी रिलीज़ डेट है जो वर्जन 2.2 है, ये 8 जुलाई 2013 को ये रिलीज़ होता है और फिर इसका डाटा जो है वो इसका जो रिलीज़ होता है और फिर जो इसकी जो मेंटेनेंस है इट कंटिन्यूड एंड दिस कंटिन्यूड। और इस
दिसंबर 2012 में एक और वर्जन आता है 2.310, फिर 3 दिसंबर फिर 14 मई 2013 को 2.5.9 वर्जन इसका मार्केट में आता है, और ये कंटिन्यू, और 2.7 जो वर्जन है इसका वो जो अभी भी अगर किसी के पास अवेलेबल है तो इट इज स्टिल सपोर्टेड। तो ये 2.7 वर्जन जो है इट एंटर द मार्केट बेसिकली 12 मई 2014। ये वो वर्जन है जो बड़ा एक्टिवली अवेलेबल है और ये मिल जाता है, और इसकी जो मेंटेनेंस है वो तकरीबन प्रॉमिस्ड है 2017 तक। इसी तरह जो इसका है 2.8.7 वर्जन है जो 2.7.9 के बाद का है, इसकी मेंटेनेंस है वो तकरीबन 2014 to 16। ये इसकी प्रोग्रेस को शो कर रहा है कि किस तरीके से, कितनी तेज़ी से ये सॉफ्टवेयर जो है पिछले कोई अगर 5 साल के डाटा को आप देखें तो पिछले 5 सालों में इसकी बड़ी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस है, जिसमें बड़े लेटेस्ट वर्जन जो है वो आते रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल में एक एब्रीवेशन लिखी हुई है EOL। EOL का क्या मतलब है? ये एक मैनेजमेंट मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। इस एब्रीवेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मीनिंग्स मौजूद हैं, तो आइए इसके मीनिंग्स की तरफ ज़रा जाते हैं। EOL, एंड ऑफ लाइफ, is a term used with respect to a product supplied to the customers with respect to its useful life. Vendor जो है intends to stop marketing, selling or sustaining it. This is the meaning of end of life. In the specific case of the product sale, a vendor may employ the more specific term end of sale, कि उसकी सेल जो है वो रोक दी जाए। Different lifetime examples in real life, which we in real life the examples which we are also familiar, they are about the toys, they are about the fast food chains. They are about the toys which are generally complementarily given at the fast food chain. इसी तरह गाड़ियों की जो लाइफ है उसके बारे में, मोबाइल फ़ोन के बारे में वगैरह वगैरह। तो स्टूडेंट्स, हम ज़रा अब एंड ऑफ लाइफ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एंड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है। एंड ऑफ लाइफ से मुराद ये है आम तौर पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर, या कोई भी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर के अलावा कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे मैंने ये इस स्लाइड में सबसे आखिरी जो बुलेट पॉइंट है जिसमें गाड़ियों का जिक्र किया गया है, मोबाइल फ़ोन का जिक्र किया गया है और टॉयज़ का जिक्र किया गया है। जो मैन्युफैक्चरर है वो चाहता है कि वो मार्केट में रहे, वो मार्केट में अपना शेयर लूज़ नहीं करना चाहता। ये बात हमने, शेयर वाली बात हमने कई पिछले लेक्चर्स में की है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड थे। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपेटिटिवनेस। तो अगर किसी वेंडर ने मार्केट में रहना है तो उसको इनोवेशन करनी पड़ेगी। नंबर 1, इनोवेशन से होगा क्या कि उसकी प्रोडक्ट के बारे में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहेगा, प्लस जो मज़ीद कस्टमर्स हैं वो उसकी प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस को, अट्रैक्शन को देखते हुए वो भी इसकी तरफ माइल होगा, और इस तरीके से उसका मार्केट, उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है, जो कि बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो उसकी जारी रहेगी। तो स्टूडेंट्स,
इसलिए हर कंपनी, हर मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को हमेशा उसमें इनोवेशन करता है। ये था नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर एंड ऑफ लाइफ डिक्लेयर ना की जाए तो फिर बिजनेस के आगे बढ़ने के चांसेस नहीं होते और ज़्यादा ख़तरा होता है कि उसको मार्केट से कोई ड्राइव आउट कर देगा। बाज़ औक़ात तीसरा जो पॉइंट है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एंड ऑफ लाइफ इसलिए भी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है कि बिज़नेस जो है वो कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे होते हैं या तो उसी प्रोडक्ट की वो इम्प्रूव वर्जन होती है या ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फील्ड की प्रोडक्ट होती है। तो इसलिए भी एंड ऑफ लाइफ जो है वो डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो EOL से रिलेटेड है वो ये कि कस्टमर को या कंज्यूमर को एक मैसेज देना होता है कि वो अपने कंजम्पशन स्टाइल में चेंज लेकर आए, वो अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लेकर आए या वो तैयार हो जाए, उसके लाइफ स्टाइल में एक तब्दीली आने वाली है, उसको बाखबर किया जाता है ताकि क्योंकि उसके बाद ना उस प्रोडक्ट के स्पेयर पार्ट्स मिलने हैं, ना उसकी कोई वारंटी गारंटी की कोई जिम्मेदारी लेता है। तो इसलिए उसको एक वार्न किया जाता है, एक ख़बरदार किया जाता है कि अब या तो नई प्रोडक्ट आने वाली है इसलिए उसको छोड़ना पड़ेगा, या फिर वो तैयार हो जाए उसको इसकी जो प्रोडक्ट की जो चीज़ें हैं, जो पार्ट्स हैं, जो मेंटेनेंस है वो कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स, एंड ऑफ लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। तो ये सेलिंग और मार्केटिंग और इसकी जो भी चीज़ है, जैसे ही उसकी EOL डिसाइड कर दी जाती है मैनेजमेंट लेवल के ऊपर, तो फिर उसकी एडवर्टीज़मेंट रोक दी जाती है। और एडवर्टीज़मेंट रोकने के साथ ही और ये काम कब किया जाता है? जब कंपनी या वेंडर या जो मैन्युफैक्चरर है उसने कोई अल्टरनेटिव बेहतर प्रोडक्ट जो है चूज़ कर ली हो, उसके पास टेक्नोलॉजी आ गई हो या उसके पास एक्सपर्टीज़ आ गई हो या उसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है बहुत कामयाब तरीके से कोई नई चीज़ जो है उसकी वजह से ऐड हो गई हो। तो इसके साथ ही जैसे ही प्रोडक्ट की EOL डिसाइड कर ली जाती है मैनेजमेंट के पास, तो नई प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी होती है और उसके साथ ही इसकी पुरानी की एडवर्टीज़मेंट रोक कर साथ ही एक सरप्राइज़ या एक क्यूरियोसिटी जिसके अंदर हो वो मैसेज जो है बार बार कस्टमर को, यूज़र को, कंज्यूमर को दिया जाता है। जैसे जल्द आ रहा है या कमिंग वेरी सून या कोई इस किस्म का कोई और मैसेज या कोई बाज़ औक़ात आइकॉन या इंडिकेटर ऐसे होते हैं कि जो ब्लिंक करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नाम आता है लेकिन half the name is shown and the remaining half is closed. Some of the properties are shared and the other properties are remain hidden. तो ये इस तरीके से एक तरीक़ाकार होता है कि कस्टमर को अलर्ट रखा जाता है ताकि जिन जिन कस्टमर्स के पास कोई उसकी ओल्ड प्रोडक्ट है वो उनसे गेट रेड ऑफ कर ले, या अगर वो तैयार हो जाए, अगर वो नहीं ले सकता तो फिर पुरानी प्रोडक्ट की उसको चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आम तौर पे जो प्रैक्टिस है वो ये कि गाड़ियों के बारे में 10 साल का पीरियड, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में 3 years पीरियड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इस EOL को अनाउंस करने का कि वो बिल्कुल ज़बरदस्ती छोड़ दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यही जो सर्विसेज हैं वो उस कंपनी के साथ कोई थर्ड कंपनी जो है एक एग्रीमेंट कर लेती है, सेकंड थर्ड कंपनी, कुछ और कंपनी जो एग्रीमेंट कर लेती हैं, वो उनसे एक कमिटमेंट कर लेती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो पार्ट्स हैं, जो वारंटी है, जो उसकी मेंटेनेंस है वो अपने ज़िम्मे ले लेती हैं।
तो इस तरह जो कस्टमर की लॉयल्टी है या कस्टमर की जो अटैचमेंट है वो एक्चुअल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ रहती है, इसलिए कि उसको पार्ट्स मिल रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस मिल रही है, अगरचे वो आगे आउटसोर्स हो गई है किसी थर्ड पार्टी को, लेकिन कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है कि उसको प्रोडक्ट्स के पार्ट्स जो हैं वो और उसकी मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपरली मिलती रहती है। यही सिलसिला जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ है। सॉफ्टवेयर में भी कुछ अर्सा एक सिलसिला चलता है और उसके बाद फिर नया आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग EOL इन कंप्यूटिंग, कंप्यूटर में काफ़ी एग्जांपल्स हैं जिसमें EOL जो है वो टाइम टू टाइम अनाउंस हो जाती है। जैसे विंडोज़ के बारे में, विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 98 को एंड ऑफ लाइफ डिक्लेयर किया ऑन 30 जून 2006। 2006 जून में विंडोज़ 98 का एंड ऑफ लाइफ डिक्लेयर किया। अब सॉफ्टवेयर के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि इनकी जो इनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं उनकी कंपैटिबिलिटी बड़ी इफ़ेक्ट हो जाती है। मसलन ऐसे सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ 98 के साथ कंपैटिबल थे, जैसे ही विंडोज़ 98 जो है वो उसको EOL डिक्लेयर किया गया, तो उसके बाद अगर जो विंडोज़ नेक्स्ट विंडो आई उसमें अगर वो इंस्टॉल या वो प्रोडक्ट बाज़ औक़ात एसेसरीज़ हैं जो यूजेबल नहीं रहती, जैसे स्कैनर्स हैं, जैसे हमारे प्रिंटर्स हैं, या इसी तरह की कुछ और एसेसरीज़ हैं कि जो कि प्रीवियस विंडोज़ के साथ कंपैटिबल थी, जिनके ड्राइवर्स जो है वो प्रीवियस विंडोज़ के साथ कंपैटिबल थे। अब जो नई प्रोडक्ट्स आती हैं, या अगर आपके पास वही पुराना विंडोज़ का वर्जन है या उसके कोई भी और सॉफ्टवेयर जिसका पुराना वर्जन है, तो वो नई प्रोडक्ट जो है वो पुराने वर्जन ऑफ विंडोज़ के साथ वो कंपैटिबल नहीं रहती और यूज़फुल नहीं रहती। इसलिए या तो प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ता है या फिर सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ता है। तो बहरहाल दोनों में एक कंपैटिबिलिटी का होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जब ये डिक्लेयर किया गया तो इट्स सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस्ड आफ्टर दैट डेट सच एज ऑफिस 2007 which was released in November 2006 is not supported on Windows 98 or any version prior to the Windows 98। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि फिर इसके बाद की जो EOL अनाउंस करने के बाद की जो प्रोडक्ट मार्केट में आती हैं वो ज़्यादा कंपैटिबल नहीं रहे, वो कंपैटिबल नहीं होती और वो उनसे उनकी यूटिलिटी जो है वो फिर निल हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, तो मकसद ये है कि कंप्यूटर में या कंप्यूटिंग में एंड ऑफ लाइफ का जो फील्ड है कंप्यूटिंग फील्ड में, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है, ख़ास तौर पे प्रोडक्शन में, सपोर्टेबिलिटी में, परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स में। यानी हमें ये गारंटी करनी पड़ती है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से लेने जाते हैं, जो नई एसेसरीज आती हैं, इवन बाज़ औक़ात USB, इवन बाज़ औक़ात जो है हमारे हेडफोन्स जो हैं वो भी कंपैटिबल नहीं होते, तो वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे जिनके साथ ड्राइवर्स का इशू आता है। तो students, so depending upon the vendor end of life may differ from end of service life, which has the added distinction that a vendor of the systems or the software will no longer provide maintenance, troubleshooting or other support, जैसे मैंने आपको clearly बताया। तो end of life और end of service life जो है दोनों में एक डिफरेंस है, बड़ा क्लियर डिफरेंस है। एंड ऑफ लाइफ तो ये है कि ये प्रोडक्ट जो है अब फर्दर इसका ये वर्जन या ये प्रोडक्ट जो है अब
मैन्युफैक्चर नहीं होगी, या तो इसका कोई और वर्जन आने वाला है या इसकी जगह कोई और नई प्रोडक्ट लाई जा रही है। जबकि एंड ऑफ सर्विस लाइफ का मतलब ये है कि प्रोडक्ट तो अवेलेबल है, लेकिन जो आफ्टर सेल सर्विस फैसिलिटीज़ हैं या मेंटेनेंस है वो कंपनी इस डेट के बाद प्रोवाइड नहीं करेगी। ये जो दोनों में फ़र्क है, एंड ऑफ लाइफ जो है, जब प्रोडक्ट नई मार्केट में आती है तो आम तौर पे उसकी एंड ऑफ लाइफ अनाउंस नहीं होती, सिवाय इसके कि एक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में एक रफ एस्टीमेट होता है कि इसकी प्रोडक्ट की 10 साल लाइफ है, 5 साल है, 6 साल है वगैरह। लेकिन प्रोडक्ट के साथ जो उसकी मेंटेनेंस की सर्विसेज जो हैं, वो जो कंपनी जो कमोडिटी की मैन्युफैक्चरिंग है, उस मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही होती हैं, वो आम तौर पे वारंटी कार्ड के ऊपर मेंशन होती हैं, या जो उस प्रोडक्ट की जो उसका बुकलेट है वो उसके ऊपर मेंशन होती हैं कि और बाज़ औक़ात एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स की जो मेंटेनेंस है या वारंटी है वो डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम गाड़ी लें तो गाड़ी में मुख्तलिफ पार्ट्स की जो गारंटी है, जो वारंटी है, वो डिफरेंट मंथ्स में या डिफरेंट ईयर्स में मेंशन होती है। इसी तरह जो कंप्यूटर की से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं उनमें भी हर एक की वारंटी डिफरेंट होती है। कुछ 6 मंथ्स देते हैं, कोई 3 मंथ्स वारंटी, कोई 1 साल वारंटी देते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स जो कि कंप्यूटर बनाते हैं, उनके कंप्यूटर के पार्ट्स की वारंटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो ये ऑलरेडी नोन होती है। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन एंड ऑफ लाइफ और एंड ऑफ सर्विस लाइफ। यानी नई प्रोडक्ट आ गई, एंड ऑफ सर्विस लाइफ उससे बिल्कुल नोन है, जबकि एंड ऑफ लाइफ जो है वो कंपनीज जो है वो पहले से अनाउंस नहीं कर सकती। उसकी एक टेक्निकल रीज़न है। अगर एंड ऑफ लाइफ कंपनीज जो है वो पहले से अनाउंस कर दें तो फिर उनकी प्रोडक्ट की जो सेल है वो एक ख़ास पीरियड तक तो बहुत ज़्यादा होगी और उसके बाद बिल्कुल ही रुक जाएगी, क्योंकि लोग फिर इंतज़ार करना शुरू कर देंगे कि कब एक नई प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रही है। तो इस एक कंट्रोवर्सी से बचने के लिए और अपनी प्रोडक्ट की रिट्रीट से बचने के लिए कंपनीज जो है वो एंड ऑफ लाइफ एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन वो अनाउंस नहीं करती, बट एंड ऑफ सर्विस लाइफ जो है वो अनाउंस की जाती है। दोनों में, एक में एनकरेजिंग फैक्टर है और दूसरे में डिस्करेजिंग फैक्टर है। तो कंपनी इसलिए अपनी प्रोडक्ट के बारे में ये, लेकिन आजकल जितना फास्ट इंफॉर्मेशन है और जितना ये जो सॉफ्टवेयर हम पढ़ रहे हैं इसकी मदद से और एक्सपीरियंस की बेस पे जो कस्टमर्स हैं वो इस पीरियड को एस्टिमेट कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसलिए जैसे ही साल इवन जो एंड ऑफ लाइफ अनाउंस ना भी हो, तकरीबन साल 1.5 साल के बाद जो है कंज्यूमर का टेस्ट जो है वो बदल जाता है और वो उससे नई प्रोडक्ट से एंजॉय करना चाहता है। तो इसलिए पुरानी प्रोडक्ट की सेल जो है, यानी सेकेंडरी मार्केट के अंदर उसकी सेल जो है वो शुरू हो जाती है। इन दोनों के दरमियान एक बड़ा गहरा लिंक है जो कि मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से है। तो एंड ऑफ सर्विस लाइफ और एंड ऑफ जो लाइफ है, एंड ऑफ सर्विस लाइफ जैसे ही ये करीब आती है, मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज़ की वारंटी जो है, यानी उसके आफ्टर सेल सर्विस जो है उसकी मेंटेनेंस की जो वारंटी है, अगर 3 साल है तो 3 साल मुकम्मल होने से पहले पहले उसी कंपनी की दूसरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए कि कस्टमर जानता है कि पुरानी प्रोडक्ट की अब आफ्टर सेल सर्विस जो है वो ख़त्म हो जाएगी और मुमकिन है वारंटी के बाद अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो उसको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। इस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए कस्टमर जो है वो प्रेफर करता है
कि एंड ऑफ सर्विस लाइफ जैसे ही करीब हो तो वो एक नया वर्जन या नई प्रोडक्ट लेने की कोशिश करता है। तो इस तरह चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा, सॉफ्टवेयर, सच सॉफ्टवेयर विच आर इन द डोमेन ऑफ EOL या एंड ऑफ सर्विस लाइफ होते हैं, विच इज abandoned service wise by the original developer is called abandonware। तो abandonware ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके साथ ये दो खसूसियात एसोसिएटेड होती हैं उसको हम abandonware कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। Sometimes software vendors hand over software on end of life, end of sale or end of service to the user community to allow them to provide service and further upgrade themselves। ये डिपेंड करता है। अच्छा, ये यहाँ मैं थोड़ी सी बात समझा दूँ कि क्योंकि एग्जिस्टिंग जो कंपनी है वो एक नए मॉडल और नए वर्जन की तरफ जा रही होती है, तो वो जो प्रीवियस वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर है वो आगे किसी और को परमिट कर जाती है कि वो अगर चाहें तो वो इसको डेवलप कर लें या इसकी मेंटेनेंस में कोई अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कोई मार्केट से कोई पैसे कमा सकते हैं, तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ख़ास कॉस्ट पे करके उनको अलाउ कर दिया जाता है। The notable examples are the web browser Netscape Communicator, which was released in 1998 by Netscape Communications under an open source license to the public, and the Office Suite Star Office, which was released by Sun Microsystems in October 2000 as openoffice.org, later LibreOffice। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका ये जिक्र किया गया है कि किस तरीके से वो एक थर्ड पार्टी को या फर्दर अपग्रेडेशन के लिए किसी और कंपनी को या और मेंटेनिंग मैन्युफैक्चरर को वो हैंड ओवर कर सकते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन कॉस्ट। इंटरऑपरेबिलिटी, ये पिछले लेक्चर में भी हम ब्रीफ डिस्कस कर चुके हैं। Moodle has import features for use with other specific systems such as importing quizzes or entire courses from Blackboard or WebCat. Moodle runs without modification on Unix, Linux, FreeBSD, Windows, Mac OS, NetWare, and any other system that support PHP, which is home page, and a database including the web host providers। तो ये इसके कुछ Moodle के बारे में जो है इंटरऑपरेबिलिटी है। As of February 2010, Moodle will not import Blackboard courses, apparently due to the changes in the PHP code releases। ये पुराने जो इसके वर्जन थे उसमें ये बात थी, लेकिन अब जो है ब्लैकबोर्ड में बिल्कुल इजीली ये यूज़र फ्रेंडली हैं, कंपैटिबल हैं, कन्वर्टिबल हैं और इंटरऑपरेबिलिटी इनके दरमियान मौजूद है। In March 2012, Blackboard acquired 2 companies based on Moodle software, including Baltimore-based Moodle Rooms, INC, and NetSpot of the Adelaide, Australia. Moodle will always be an open source project with clear delineation between Blackboard and Moodle। ये एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि चूँकि ब्लैकबोर्ड, जैसे मैंने बताया कि ब्लैकबोर्ड जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिसमें लर्निंग, बेसिकली जो लर्निंग सॉफ्टवेयर हैं, इनके अंदर एक पूरा टेस्ट बैंक जो है पूरी बुक का बिल्ड किया जाता है। एक से ज़्यादा बुक्स का भी करते हैं अगर
एक ही पब्लिशर हो मल्टीपल बुक्स का, तो वो ब्लैक बोर्ड जो सीरीज़ में ब्लैक बोर्ड आता है उसके अंदर लर्निंग सिस्टम को बिल्ड किया जाता है मुख्तलिफ बुक्स को। तो जब इसको ओपन करते हैं इंस्टॉल के बाद, जब इसको ओपन करते हैं तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स का ऑप्शन आता है, तो उस सब्जेक्ट्स के मुताबिक हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये मैंने आपके साथ पहले भी ये स्लाइड शेयर की हुई है। ये सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर यहाँ पे रिपीट हो गई है। इसका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा फर्दर ये चीज़ हम लास्ट लेक्चर में हम जो है वो इसको although how exactly social constructionism makes Moodle different from the other e-learning platform is difficult to show। ये इसके ओरिजिन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव में पेडागॉजिकल अप्रोच जो है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सके थे। द स्टेटेड फिलॉसफी ऑफ Moodle includes a constructivist and social constructionist approach to education, emphasizing that learners and not just teachers can contribute to the educational experience। जैसे मैंने बताया था कि Moodle जो है ये एक टू वे लर्निंग प्रोसेस है। टीचर्स बिल्ड करते हैं और ये टीचर्स के लिए लर्निंग के लिए भी है, और इसके अलावा जो लर्न करना चाहते हैं यानी टीचर्स जो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मज़ीद सिखाना चाहते हैं या और कुछ सीखना चाहते हैं और लेक्चर के और ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने में, वो उनमें उनके लिए ये यूज़फुल हो सकता है। तो Moodle जो है एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। ये इसका एक एक्रोनिम बैकग्राउंड है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ इसकी डिटेल बताई गई है इस स्लाइड में, आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। इन द अर्ली ईयर्स M जो है M स्टूड फॉर मार्टिन्स नेम्ड आफ्टर। ये स्लाइड मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बताई थी, लेकिन स्लाइड के तौर पर एक आपके नोट्स में मैंने ये ऐड कर दिया है। तो स्टूडेंट, द नेम वाज चोजन बिकॉज ऑफ द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ Moodle टू correspond टू एन अवेलेबल डोमेन नेम। तो डिक्शनरी मीनिंग को भी सामने रख के इसके मॉड्यूल से मॉड्यूल जो कि M से पहले नाम था, तो अब जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसके मॉड्यूल होने की वजह से, क्योंकि डिफरेंट मॉड्यूल्स हम डेवलप करते हैं इसमें, तो उसकी वजह से इसका M जो है वो मार्टिन की बजाय ये मॉड्यूल को शो करता है। So a Moodle Moot is a conference for Moodle community members held to learn about Moodle, share experiences of the learning platform, discuss research and related educational technologies and contribute ideas to the future Moodle development। ये इसका एक सम अप इसका फ़ायदा है कॉन्फ्रेंसेस में कि किस तरीके से इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो Moodle Moot जो है एक कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है फॉर Moodle कम्युनिटी मेंबर्स, which can be held to learn about the Moodle in detail and then the sharing of experience। ना सिर्फ ये कि वन वे लर्निंग है, जिसे मैंने बताया कि शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द लर्निंग प्लेटफॉर्म के डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से लर्न करते हैं, which can be shared through this Moodle Moot या Moodle conferences। और ये जितने लोग एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस को और साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को मद्देनज़र रख के और सोशल नीड्स को सामने रख के कि इंसान जो है वो किस तरह
अगर ख़ास तौर पे ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है, ख़ास तौर पे वो ग्रेजुएट्स या डिप्लोमा होल्डर जो बहुत जल्द जॉब मार्केट में आ जाते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मूडल से रिलेटेड जो मूड्स हैं या कॉन्फ्रेंसेस हैं वो पूरी दुनिया में होते हैं, जिसमें इसके पार्टनर्स, इसकी एसोसिएशन इससे रिलेटेड और इसके मूडल हेडक्वार्टर जो है वो अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। As far as adoption is concerned in the higher education market, as of fall 2013, Moodle is the second largest provider with 23% market share, following the Blackboard which is 41%. तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो डोमिनेट कर रहा है वो Blackboard है। अब चूँकि Blackboard और Moodle में जो डाटा की जो यूजिबिलिटी है और इंटर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी है और डायरेक्टली मूडल में ब्लैकबोर्ड जो है वो खोल जाता है, तो इस फैसिलिटी की वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने इम्पोर्टेंट लर्निंग सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा कुछ और भी सॉफ्टवेयर इससे मिलते जुलते मार्केट में अवेलेबल हैं। डिज़ायर टू लर्न जो है इसकी मार्केट शेयर जो है वो तकरीबन 11% है, और इसके अलावा भी कुछ और भी फर्दर लर्निंग सिस्टम जो हैं वो अवेलेबल हैं। इन द कॉर्पोरेट मार्केट, द 6 लार्जेस्ट LMS learning management system providers constitute approximately 50% of the market, with Success Factors Learning, Sabha Software, one is INC, Sum Total Systems being the 4 largest providers. इसके अलावा vendors focused on mid-size companies, 200 plus employees इसमें हैं, include Halogen Software and ADP and Workday। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है अडॉप्ट किया है, एंड दे आर यूजफुल। तो स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट the topic of discussion, the next topic of discussion, creating a new course in Moodle. A teacher can edit and add content to courses which have already been created, and if you need to have a brand new course, you must either ask your admin to set up the blank course for you or else give you course creator privileges. इस सॉफ्टवेयर को या कोई भी लर्निंग सिस्टम्स का सॉफ्टवेयर हो, इसको ज़ाहिर है इसको मैनेज करने के लिए, इसको ऑर्गेनाइज वे से चलाने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होते हैं। अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ में इसका यूज़ कॉमन होता जा रहा है, तो जैसे ही कोर्स सेमेस्टर के स्टार्ट में जब कोर्स असाइन होता है टीचर को 15 दिन पहले, सेमेस्टर स्टार्ट होने से 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले जब उसको कहा जाता है कि आप कोर्स मटेरियल अपना डेवलप करें और कोर्स फोल्डर बनाएं, तो किसी ज़माने में कोर्स फोल्डर जो है वो मैनुअली बनते थे, बाज़ार से फोल्डर लेके उसके अंदर पार्टीशन करके उसमें सेपरेटर लगा के कोर्स मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता था। लेकिन मूडल और सिमिलर लर्निंग सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के बाद ये किया गया है कि टीचर को एक लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह उसको इशू कर दिया जाता है और उसको पासवर्ड चेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, और उसके लिए मेन्यू बार जो है वो क्लियरली उसके अंदर जैसे ही वो उनको सिलेक्ट करता है, क्लिक करता है, ओपन करता है, तो उसके अंदर वो अपना कोर्स मटेरियल जो है वो ऐड कर सकता है। फिर उसके बाद जब स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन होती है, तो वो ग्रुप जो इस टीचर के नाम से रजिस्टर्ड होते हैं वो इस मटेरियल को जिस हद तक एडमिनिस्ट्रेटर उनको परमिशन या एक्सेस प्रोवाइड करता है,
उस मटेरियल तक, उस ख़ास डेट तक या उस ख़ास डेट से ऑनवर्ड टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर वो फैसिलिटी उसको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इनिशियली ये टीचर को जो है वो कहा जाता है कि उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो कैसे अपना कोर्स या कोर्स मटेरियल जो है इसमें अरेंज करता है। ये एक विंडो मैंने खोली हुई है, इसमें आप देखें इसका ये स्क्रीनशॉट जो है आपके सामने शेयर किया जा रहा है। कोर्स कैटेगरीज में डिफरेंट कोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाएं तो इसमें कुछ मैथ से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं, कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं। तो उनके उस कैटेगरी के हिसाब से जिस फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन में या जिस फील्ड ऑफ प्री रिक्विजिट कोर्सेज में कोई कोर्स फॉल करता है उस कैटेगरी के अंदर वो उसको लगाया जाता है। तो जो न्यू कोर्स जब क्रिएट करना होता है तो इस ड्रॉप डाउन एरो को हम क्लिक करते हैं और फिर उस कैटेगरी को सबसे पहले कोर्स कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम एडिट दिस कैटेगरी, अगर इसमें कोई एडिटिंग करनी हो तो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर चेक करता है कि जिसको कोर्स अलॉट हुआ है एग्जैक्टली वही पर्सन है, तो वो यहाँ से परमिशन डिसअलाउ करता है और ये जो है वो इसमें नया कोर्स मटेरियल जो है वो एडिट नहीं कर, कैटेगरी को एडिट नहीं कर पाता। तो कंफर्म करने के लिए दोबारा ये वो उसको मेल की जाती है, बताया जाता है और फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको थ्रू टेलीफोनिक मैसेज या थ्रू ईमेल मैसेज जो है वो अलाउ कर देता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इजीली सी व्हाट इज़ बीइंग डन एंड हु वाज एक्चुअली caught in trouble। अगर किसी कैटेगरी की सब कैटेगरी है तो उसमें वो सब कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक फर्जी तौर पर एक नाम जनरेट किया गया है इन कोर्सेज में कि कंप्यूटर लिटरेसी का कोर्स है। इसमें ये एडिट में ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि अडॉप्ट किए जा सकते हैं। एडिट में डिलीट करना है, नया कोर्स राइट करना है या एग्जिस्टिंग कोर्स के अंदर एडिटिंग करनी है या कोई मिस्टेक या कोई और इसमें फंक्शन करना है, तो ये आइकॉन जो है यूज़ किए जा सकते हैं। इनकी डिटेल आगे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। ओके, तो इनमें से जो है जिसको भी इनमें से सिलेक्ट करना हो वो हम कर सकते हैं। तो मूव सिलेक्टेड कोर्सेज टू, ये यहाँ मल्टीपल ये ड्रॉप डाउन एरो से ये डिटेल आ जाती है कि कहाँ ऐड अ न्यू कोर्स। यहाँ पे हम कोर्स को सर्च करके हम यहाँ पे नए कोर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, continuing with the creating a new course, we enter the course settings and then click the save changes button जो एंड पे शो होता है। अगर हम सेव ना करें तो विदाउट सेविंग अगर हम चेंजेस को इसको आप क्लोज कर दें तो फिर हमें जब भी हम इसको ओपन करेंगे वी विल हैव टू रिपीट द सेम अगेन। So on the next screen, choose your student teachers to assign to the course. You can skip this step and do it later. अगर अभी आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट नहीं प्रोवाइड की गई, अगर आपको डिटेल नहीं है तो फिर हम इसका कर सकते हैं। So a course home page looks like the following screenshot. ये अभी मैं नेक्स्ट पेज पे ये दिखाऊंगा आपको, ये इस तरीके से आपको नजर आएगा। एंड डाउन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर द ब्लॉक्स, ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं इसके लेफ्ट और राइट साइड पे, और इन ब्लॉक्स में एक बड़ी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके कोर्स से रिलेटेड वो मौजूद होती है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।
blocks which can be added to and removed, and in the middle is the work area. यहाँ पे ये जो दरमियान में जो है ये हमारा वर्क एरिया है, और ये जो वो चॉइसेस हैं हमारे कोर्स से रिलेटेड लेफ़्ट और राइट पे, इनको हम चूज़ करके इसमें जो भी अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशन जो हैं वो कर सकते हैं। तो दरमियान में ये वर्क एरिया है, यहाँ पे हमने लिखना है कि क्या हमारा ये टेस्ट क्विज़ है या कोई और असाइनमेंट है या कोई रीडिंग मटेरियल है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लिखते हैं फ़ोटो नोट नॉलेज है कि ये एडिशनल नॉलेज है। तो इस किस्म की यहाँ डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पे वो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वक्त हम शायद इसको मुकम्मल ना कर सकें, तो अगला लेक्चर हम इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, लेट मी वेरी ब्रीफली, ये हम इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है इसी पेज से स्टार्ट करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके अंदर जो है आप काम कर सकते हैं, किस तरह आप एडिट कर सकते हैं, और आप किस तरीके से इसके ब्लॉग जो है बना सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है ये ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये अगले लेक्चर का एक रिव्यू है। ये मैं आपको आइकॉन भी एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से ये सारे आइकॉन जो हैं वो उसमें हर आइकॉन जो है वो किस पर्पज़ के लिए है, ये इसकी डिटेल जो है ये आपके लेक्चर के साथ रहेगी। आज सिर्फ आज का लेक्चर पढ़ने के बाद आपने सिर्फ इनको अच्छी तरह देखना है, समझना है, ताकि जब हम अगले लेक्चर में इनकी डिटेल डिस्कस करें तो आपको इसका पता हो और आपको जल्दी समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने इसकी डेवलपमेंट को एक दफ़ा फिर क्विकली हमने पढ़ा कि ओवर द ईयर्स किस तरीके से इसके डिफरेंट वर्जन्स मॉडल के जो डेवलप हुए, और फिर के एंड ऑफ लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर में, और बाकी ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट्स होती हैं एंड ऑफ लाइफ, और एंड ऑफ लाइफ से रिलेटेड इसी तरह जो एंड ऑफ सेल सर्विस या EOS जो है इसका क्या मतलब है, ये हमने डिस्कस किया। सॉफ्टवेयर के बारे में एंड ऑफ लाइफ जो है बड़ा मीनिंगफुल है, इसका मतलब ये होता है कि अब नया वर्जन जो है वो आने वाला है, या नई प्रोडक्ट जो है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वो इंट्रोड्यूस होने वाली है। फिर हमने इसको बाकी जो सिस्टम्स हैं उनके साथ इनकी इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसको डिस्कस किया। दिस वाज बेसिकली इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। कुछ इसमें चीज़ें रह गई थी जो आज हमने डिस्कस कर ली। बैकग्राउंड ओरिजिन में कुछ चीज़ें रह गई थी, वो हमने डिस्कस कर ली आज। मॉडल कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर इसके अडॉप्शन इसकी सिग्निफिकेंस को शो कर रही है कि ये कितना इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ब्लैक बोर्ड के बाद सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट सॉफ्टवेयर है वो मॉडल है इन दी फील्ड ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा फिर इसके जो इसकी अडॉप्शन को फर्दर हमने देखा, और हाउ टू क्रिएट अ न्यू कोर्स हम यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया। और फिर फर्दर जो है हाउ टू गेट स्टार्ट ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मैंने ये इसलिए आज के लेक्चर में ये स्लाइड्स ऐड कर ली हैं ताकि इन स्क्रीनशॉट्स को आप अच्छी तरह देख के इनको समझ सकें, और जब मैं अगले लेक्चर में ये एक्सप्लेन करूँ तो आपको अच्छी तरह समझ आए। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। हम इसके साथ ही आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ विद द सेम फील्ड मॉडल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।